In the previous class, we had started Introduction to Sound, which is your note set number 21. We had learnt about the nature of sound as a mechanical wave, which needs an elastic medium to travel. And we understood that sound is a sort of longitudinal vibration in which the particles of air or the molecules of air, they enable the progression of sound energy by compression and rarefaction. So air gets compressed and rarefied, and in this way, by alternating this, the energy is transmitted from one point to another. Then human response to sound was started. We understood that the response of human beings to sound, to listening of any sort of sound from the surroundings, would result in two sorts of or two types of responses. One is a subjective response and the other is an objective response. Subjective response means when you listen to a certain sound, you make a judgment about its pitch, its loudness and quality. But you cannot say or you cannot assign a number to your assessment. To assign a number or to quantify something that you have encountered, you need different parameters. And those parameters are frequency of sound, pressure of sound, intensity of sound, and power of sound. Frequency of sound is measured in hertz. Pressure of sound, as usual, would be measured in Newton per meter square. Intensity and power are basically measures of sound energy. So first we define the unit for power, which everybody knows is watts. Watts means joules per second. And intensity is defined as the sound power experienced per unit normal area. So the unit of intensity becomes watts, that is sound power, per unit area, that is meter square. So watts per meter square is the appropriate unit of sound intensity. Now let us understand intensity a little bit more, because we are going to encounter this term again and again in the upcoming topics. Intensity of sound, as defined, says that it is sound power experienced by a user per unit of surface area. Now, let us consider a point source of sound. Without trying to understand what is causing the sound, whether there is a loudspeaker or a person who is speaking or something like that, just imagine that a point in open space is generating sound. Now, how will this sound propagate? This sound will propagate three-dimensionally in all directions. All directions from the central point. So basically, we can say that sound energy starting from the point source is being dissipated in concentric spherical bubbles. You can say that sound energy is expanding outward in the form of a spherical bubble. Now, in order to understand the concept of intensity, you have to stand at a particular distance from the point source. Let us say you are standing here. And at this point, which is at a radial distance r from the source, you have to actually imagine an imaginary spherical bubble. And on that bubble, you have to imagine a unit area like a small window opening up. So
Basically, what you are looking at is the sound energy coming out through this small rectangular window on an imaginary spherical bubble of radius r. The area of this imaginary rectangular window should be 1 meter square, and whatever sound power in watts is coming out of this narrow window that you have opened, that is called as intensity. So this is the basic concept and definition of intensity, how sound power would be experienced from a unit normal surface area, and that normal surface area has to be considered on a spherical imaginary bubble. Okay, now having said this, let us move ahead. Frequency dependent human response to sound. In this, we are basically interested in understanding how the variation in frequency is experienced by the human ear and eventually how it is perceived by the human being. Now, there are some certain standard definitions that you need to remember regarding this. Wait a minute, I'll just change the ink color. Pure tone is defined as the sound of a single frequency. So in everyday life, whatever sounds you are listening to, if you just sit quietly and try to listen to the ambient noise that is coming from everywhere, you would be able to listen to birds that are chirping, wind that is rushing through the leaves of the trees, and then some dogs might be barking somewhere. Some of your colleagues and friends might be talking nearby. So the sounds that are actually coming into your ears is a mixture of sounds that are coming from multiple sources, and each source is generating the sound at a different individual frequency. So the overall accumulation of sound waves that is reaching your ears is not of a single frequency. And pure tone is something that is defined as a sound of a singular frequency. For example, if you decide to whistle a tune, let us say I'll just create a whistling noise, and I'll show you an example of how a single frequency sound or a pure tone looks like. See, now this whistling sound is not changing its pitch, is not changing its intensity, it's not changing in any aspect. So nobody was speaking, no animal was barking, no birds are chirping. It's just a singular sound of singular frequency. Such sounds are called as pure tones. And there is another term which is called as pitch of the sound. Pitch is basically the frequency of a pure tone. So whenever you talk about pitch of a sound, you are talking about the frequency of a pure tone. And there is some general knowledge associated with it, because generally from this part of your syllabus, the topics that would be asked in your examinations would be to write short notes on frequency dependent human response to sound. So there has to be some matter that should be remembered by you so that you can put all that matter in the form of short notes. So this is what I have done. I have provided you the short notes here, but you should know how to expand it and write it appropriately in your examinations. So this is one fact which is important for you guys to remember, being students of vibration engineering. What is the audible frequency range for human beings? It is 15 hertz to 20,000 hertz. That means there would be not a single human being in our knowledge as of now who is capable of discerning a sound which is generated below a frequency of 15 hertz or a sound which is generated above a frequency of 20,000 hertz. And that is why these two frequencies
the benchmark frequencies are called as ultrasonic and infrasonic. So any frequency of sound which is below 15 hertz is called as infrasonic, and any frequency of sound which is above 20,000 hertz is called as ultrasonic. So neither infrasonic can be heard by a human being, nor ultrasonic can be heard by a human being. Human beings are basically capable of listening to sound within the frequency range of 15 to 20,000. But please don't be surprised when I say that these are extreme limits. So if you simply ask me a question कि क्या 16 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मैं सुन सकता हूं क्या, my answer to that would be I do not know. It will depend on the sensitivity of your particular ears. तो ये 15 और 20,000 की जो रेंज है, ये एक यूनिवर्सल रेंज इस तरह से नहीं है कि all human beings have this range. Some human beings have varying range. Most of the human beings won't be able to listen to a frequency of 16 hertz, 20 hertz, 25 hertz. They won't be able to listen. And similarly, 20,000 hertz की upper limit है, ultrasonic start होता है वहां से. तो अगर आप पूछें कि 19,999 hertz मुझे सुनाई देगा क्या, I do not know. Neither do you know. You will have to experience it yourself. So this is just a figurative range that has been universally decided by the international scientific community as being the limits of infrasonic and ultrasonic frequencies. Now, regarding this hearing sensitivity, the thing that we just discussed, different people have different hearing sensitivities. Okay. Most humans can hear in the range of only 1,000 to 4,000 hertz. Look at it. The same thing that we were discussing right now. अभी अपन ने ये डिस्कस किया कि 15 से 20,000 तक की हियरिंग रेंज को एक्सेप्टेंस दी जाती है, लेकिन क्या 16, 17, 18 हर्ट्ज सुनाई देता है क्या लोगों को? अधिकतर लोगों को नहीं देता. And on an average, most of the humans can only listen to sounds that fall within the range of 1,000 to 4,000 hertz only. देखो कितनी पतली सी रेंज है. यानी कि आप लोगों की और हमारी सबकी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की मिलाकर के रेंज अगर देखी जाए तो मात्र 3,000 हर्ट्ज की एक रेंज है बस, 1000 से 4,000 के बीच में. ना उससे ऊपर ज्यादा हमको सुनाई देता है, ना उससे कम सुनाई देता है. Very few people can hear anything below 63 hertz. These data have been compiled on the basis of statistical knowledge that has been collected over the years. लोगों का टेस्ट किया गया, पता लगाया गया कि भाई 63 हर्ट्ज से नीचे तो विरले ही किसी व्यक्ति को सुनाई देगा कुछ भी, और उसी तरीके से 16,000 हर्ट्ज से ऊपर रेयरली कोई आदमी होगा जो क्लेम कर सकता है कि यस मेरे को सुनाई दे रही है आवाज. नहीं सुनाई देता इसके ऊपर, अधिकतर लोगों को नहीं देता, कुछ लोगों को देता है. सो हियरिंग सेंसिटिविटी इज अ मैटर ऑफ पर्सनल कैपेसिटी. हर इंसान का कान कितना सेंसिटिव है, वो पैदाइशी कैसा कान लेके आया है, उस पर डिपेंड करता है. एंड एसोसिएटेड विद दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग. थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग का क्या लॉजिक है? इसके लिए it is defined as the minimum intensity that can be detected for a particular frequency. So whenever you talk about threshold of hearing, you are basically speaking about one singular frequency. और one singular frequency को अपन क्या बोलते हैं? Pure tone. ठीक है. तो threshold of hearing की टेस्टिंग की जाती है. If you go to a ear doctor or an ENT specialist, those people or those specialists have certain equipment with the help of which they can actually make you undergo a test and give you your personal threshold of hearing. तो आप चाहें तो एक कान के डॉक्टर के पास या कान के स्पेशलिस्ट के पास जाकर के ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग जांच करना चाहता हूं. दैट इज पॉसिबल. नाउ व्हाट डज दैट डॉक्टर डू? ही विल टेक यू टू अ साइलेंट रूम and he will make you listen to a pure tone. वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा और उस आवाज को हेडफोन लगाने को कहेगा आपको,
और आपको बोलेगा कि ये आवाज सुनाई दे रही है क्या. नाउ द फ्रीक्वेंसी वुड बी कांस्टेंट, बट व्हाट द डॉक्टर वुड बी डूइंग इज ही इज गोइंग टू चेंज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी पकड़ करके वो पहले बहुत लो इंटेंसिटी पे आवाज लगाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपसे पूछेगा अब सुनाई दिया, आप कहोगे नहीं सुनाई दिया, थोड़ा सा और बढ़ाएगा, बोलेगा अब सुनाई दिया, बोला अब भी नहीं सुनाई दिया. And so he will keep on increasing the intensity of the sound while maintaining the frequency at a constant level. सेम फ्रीक्वेंसी की एक प्योर टोन की इंटेंसिटी बढ़ाता जाएगा और एक लेवल पे आके आपको सुनाई देगा, यस डॉक्टर नाउ आई कैन लिसन. तब वो बोलेगा कि योर थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग फॉर दिस फ्रीक्वेंसी इज इतना वॉट पर मीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर स्कोर. अब थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग जो है, जिस इंटेंसिटी पे आपको ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, ये जरूरी नहीं है कि उसी इंटेंसिटी पे दूसरी फ्रीक्वेंसी की टोन भी सुनाई दे. सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टोन इज चेंज्ड, देन द होल एक्सपेरिमेंट वुड हैव टू बी रिपीटेड. तो एक नई फ्रीक्वेंसी पे नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको बिठाएंगे और बोलेंगे कि अब वापस से चालू करो. ही विल स्टार्ट विद लो इंटेंसिटी और धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते आपसे पूछेंगे सुनाई दिया, सुनाई दिया, सुनाई दिया. And the time when you say yes abhi sunai diya, then it will be tagged and placed as your threshold of hearing. तो threshold of hearing क्या चीज है? It's a value of intensity for a particular frequency. तो एक फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी मिनिमम इंटेंसिटी पे आपको वो सुनाई देती है, वो है थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग. ठीक है. Then there is something called as temporary threshold shift. Short form for this is TTS. ये क्या चीज होता है? कभी कभी आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे सोल्जर्स आर गोइंग टू वॉर एंड सम एनिमी थ्रोज अ ग्रेनेड नियर यू. तो आपका जो साथी है वो आपको वार्न तो कर देता है कि भैया ग्रेनेड आके पड़ी हुई है, एकदम से भाग लो यहाँ से. तो लोग इधर उधर कूद के बच तो जाते हैं, बट व्हेन द ग्रेनेड एक्चुअली एक्सप्लोड्स, आफ्टर दैट I'm pretty sure that 99% of you might have seen something like this, जिसमें एकदम से सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और आपको सिर्फ एक सिंगल सी एक टोन सुनाई देती है. तो इससे बेसिकली हुआ क्या है, द ईयर ड्रम हैज बीन सब्जेक्टेड टू a sound of extreme intensity, और उससे जो आपकी जो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है ईयर ड्रम की, उसको डैमेज हुआ है या फिर वो टेम्पोररीली डैमेज हो चुकी है. एंड आफ्टर सम टाइम, लेट अस से आफ्टर अ पैसेज ऑफ 5 to 10 minutes, योर हियरिंग कम्स बैक टू नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड एज टेम्पोररी थ्रेशहोल्ड शिफ्ट. यानी कि जब तक ये आपकी ईयर ड्रम्स उस एक्सप्लोजन की आवाज से रिकवर कर रहे हैं, तब तक आपकी जो थ्रेशहोल्ड है वो एक अपर लेवल पे चली गई है. यानी कि एक बहुत हाई इंटेंसिटी की आवाज ही अब आप सुन पाओगे, नॉर्मल इंटेंसिटी की आवाज अभी टेम्पोररीली आपके लिए खत्म हो चुकी है. सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ रिड्यूस्ड हियरिंग temporarily is called as a temporary threshold shift. Now counter to that, there is something else called as a permanent threshold shift. For short form, you can put the name of PTS, permanent threshold shift. ये उम्र के साथ होता है. When people grow old, the configuration of their eardrum changes. उनका eardrum या तो थोड़ा सा thick हो जाता है, उसका material deteriorate हो जाता है. See, eardrum है क्या? It is some naturally formed membrane, right? So it itself has got an age. It itself has got a deterioration period, after which the quality of your eardrum is bound to deteriorate. खत्म तो होना ही है वो. तो ओल्ड एज के साथ में, या फिर अगर वो बम वाला एग्जांपल लें, वो आपके कान के कुछ ज्यादा ही पास में फट गया, तो आपके ईयर ड्रम जो है परमानेंटली डैमेज हो जाएगी. इन दैट केस you will experience something called as a permanent threshold shift. फिर उसके बाद वो 5-10 मिनट के बाद रिकवर नहीं होता है, फिर उम्र भर के लिए आपको एक हाई लेवल की इंटेंसिटी पर ही सुनाई देता है. जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि यार ये बंदा जो है ये ऊंचा सुनता है. ऊंचा सुनने वाला आदमी मतलब कैसा है भाई, उससे बात करनी है तो आपको जोर से बात करनी पड़ेगी, ज्यादा आवाज देके बात करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि उसका जो थ्रेशहोल्ड ऑफ हियरिंग है वो बहुत हाई हो गया बेचारे का. भी
So that is a case of permanent threshold shift. And this can occur not only due to old age, but also due to some traumatic sound experience, like a very big explosion occurring very near to your ears. ठीक है? फिर उसके बाद another bit of knowledge for you. What is the frequency range of human voice? हर इंसान की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में आवाज होती है. कुछ लोगों की आवाज भारी होती है. भारी आवाज का मतलब लो फ्रीक्वेंसी. और कुछ लोगों की श्रिल आवाज होती है. जैसे लड़कियों की आवाज है, वो मेल्स के मुकाबले थोड़ी सी श्रिल आवाज होती है. तो श्रिल आवाज का मतलब या हाई पिच पे आवाज होने का मतलब क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड that emanates from their voice boxes is at a higher frequency. तो जनरली ये पाया गया है कि मेल फीमेल, भारी आवाज, पतली आवाज, श्रिल आवाज, सब लोगों को मिला लो आप. द रेंज, एवरेज रेंज फॉर ह्यूमन वॉइस इज 80 to 8000 हर्ट्ज. 80 से 8000 कॉमन रेंज है ह्यूमंस की. अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसकी 79 हर्ट्ज पे आवाज आती हो. आ सकती है, बट दे आर रेयर पीपल. ऐसा कोई इंसान नहीं होगा क्या जिसकी 8001 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे आवाज बाहर निकल रही हो गले से? हो सकता है. सो दिस इज अ कॉमन रेंज, नॉट अ रिजिड रेंज. सम वेरिएंट ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन आउटलायर्स. एनीवे, अभी तक अपन ने फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स समझा. एंड नाउ लेट अस डिस्कस साउंड प्रेशर डिपेंडेंट ह्यूमन रिस्पॉन्स. यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी को लेकर के क्या क्या गेम है वो सब अपन ने देख लिए. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रेशर ऑफ साउंड इज चेंज्ड? हाउ डू ह्यूमंस रिस्पॉन्ड टू इट? ठीक है. मिनिमम प्रेशर ऑफ साउंड रिक्वायर्ड फॉर एडल्ट्स विद नॉर्मल हियरिंग इज 2 into 10 to power -5 pascals. Pascals, as you know, is nothing but Newton per meter square. ठीक है. तो इससे कम अगर प्रेशर पे आवाज आ रही हो तो आपको सुनाई नहीं देगा. Adults means people whose eardrums have become slightly rigider and thicker due to age. यानी कि नॉर्मल अडल्ट्स की बात कर रहे हैं, बुढ़े लोगों की बात नहीं कर रहे अपन. ठीक है. बहुत एज में जिन लोगों की है उनकी बात अभी नहीं चल रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल अडल्ट्स. नाउ loudness is a subjective parameter that is associated with the pressure of the sound. मतलब जैसा आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, लाउडनेस एक ऐसा मेजर है जो कि सब्जेक्टिवली ह्यूमंस परसीव करते हैं साउंड के बारे में, एक पैरामीटर. एंड वी हैव ऑलरेडी सेड दैट लाउडनेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ प्रेशर एंड इंटेंसिटी. तो लाउडनेस क्या है? यानी आप कहीं आपके बगल में पड़ोस में कोई हाई वॉल्यूम पे डेक बजा रहा है मतलब लाउड स्पीकर पे गाने चला दिए, तो एकदम से आप परेशान होकर बोलते हो यार ये इतना लाउड म्यूजिक कौन बजा रहा है? नाउ व्हाई आर यू एक्सपीरियंसिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूजिक बीइंग प्लेड एट अ लाउड लेवल? तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपके कानों पे जो साउंड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है. दैट इज व्हाई यू आर फीलिंग इट एज अ लाउड नॉइज. ठीक है. ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है लाउडनेस. किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को आप कांस्टेंट कर लो और उसके बाद आप उस साउंड की प्रेशर और या फिर इंटेंसिटी को बढ़ा दो तो आपको फील होगा कि ये बहुत लाउड नॉइस आ रही है. सो लाउडनेस ऑफ नॉइस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रेशर, द मेजरेबल प्रेशर ऑफ साउंड. नाउ अगेन सम जनरल नॉलेज फॉर यू. 2 into 10 to power -5 pascals. See this 10 to power -5 का थोड़ा सा आप इसको फील करने की कोशिश कीजिए. 2 से लेकर के 5 डेसिमल पीछे ले जाओगे आप, तब जाकर के आपकी 2 into 10 raised to power -5 बनेगी. 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे क्या होगा? भाई 2 into 10 raised to power -5 मतलब ये तो बहुत छोटा सा प्रेशर वैल्यू हो गया. उस पे भी आपको सुनाई देता है.
20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने गुना हो गया इसका? दिस इज 10 रेज टू पावर 6 टाइम्स, यानी कि मिलियन टाइम्स ज्यादा प्रेशर की बात कर रहे हैं अपन। तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज मिलियन टाइम्स मोर देन द साउंड विच यू कैन कंफर्टेबली हियर। तो अगर इतनी हाई लेवल पे प्रेशर पे साउंड आ जाए तो आपको क्या फील होगा? द फीलिंग इज द साउंड कैन बी फेल्ट एज अ फिजिकल वाइब्रेशन, यानी कि आपको कान से ही नहीं पूरे शरीर से सुनाई देगा। वो मजाक की बात नहीं है, पूरे शरीर से लिटरली सुनाई देगा। यू कैन एक्चुअली फील द स्किन ऑफ योर बॉडी एक्सपीरियंसिंग द बीट्स ऑफ म्यूजिक कमिंग फ्रॉम सच सोर्सेस। जैसा कि कभी शादी ब्याह में चले जाओ तो वहां पर डेक को ओपन में रख दिया जाता है, बड़े बड़े बॉक्सेस, और वहां पे बगल में यंगस्टर्स वगैरह डांस करते रहते हैं, आपने भी किया होगा। तो आप उस लाउड स्पीकर के सामने जाके खड़े हो जाओ, शायद हुए भी होगे कभी, मजे मजे में खड़े हो जाओगे तो आपको सिर्फ कान में परेशानी नहीं होगी, आपको छाती पे और अपने हाथों पे पूरा उस म्यूजिक का एक्चुअल एयर प्रेशर फील होगा। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि एक्चुअली एग्जैक्टली कितना प्रेशर वैल्यू है जिसपे कि मेरा स्किन एक्चुअली उस एयर प्रेशर को फील कर पाए, एंड दैट वैल्यू इज 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर नॉर्मल अडल्ट्स on an average statistical scale. And this particular value of pressure is called as threshold of feeling. देखिए ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है ना, ये आपके जनरल नॉलेज का पार्ट बन जाती है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दिस कुड बी आस्क्ड कि थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग क्या है? थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग साउंड की प्रेशर की वो वैल्यू है जिसपे कि अगर कोई साउंड सोर्स बजना स्टार्ट हो जाए तो आपके पूरे शरीर से आपको फील होगा वो, योर स्किन वुड बी एबल टू फील द प्रेशर। दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड ऑफ फीलिंग। अच्छा, 20 न्यूटन पर मीटर पे तो आपको पूरा शरीर में झंझनाहट फील होती है साउंड की। अगर 20 का 200 कर दिया जाए तो दिस बिकम्स समथिंग विच यू कैन टॉर्चर समबडी। ये दिस बिकम्स हाईली पेनफुल। फिर ये आपके कानों के पर्दे के ऊपर इतना हैवी लोड आ जाता है इस प्रेशर पे, दे आर एट द पॉइंट ऑफ टीयरिंग अवे, एंड यू कैन एक्चुअली फील a pain, a physical pain can be felt if somebody plays a music at 200 Newton per meter square pressure. This is a dangerous level. This can cause permanent damage to human beings. तो इसीलिए ये जो साउंड है, दिस इज एक्सट्रीम वैल्यू, इसके आगे तो जाना ही नहीं है आपको। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। दीज आर certain bits of knowledge that is better remembered by you. Okay, now we come to something which we are going to encounter a lot of times, and again something about which people do not know much about. जैसे कि आपने खूब बार साउंड से रिलेटेड कोई न्यूज आर्टिकल या टेक्निकल ऐसे या कोई टेक्निकल आर्टिकल कई बार पढ़ते टाइम यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड द यूनिट ऑफ डेसिबल। डेसिबल में साउंड को नापा जाता है, और ये पहली बात तो आपको ये याद रखना है, हाउ टू राइट द एब्रिविएशन ऑफ डेसिबल। छोटा डी और कैपिटल बी, इसको किसी भी तरीके से चेंज करने की आपको परमिशन नहीं है। आप डी और बी दोनों को कैपिटल कर दें, गलत है। डी को बड़ा कर दें, बी को छोटा कर दें, गलत है। डी छोटा होना चाहिए, बी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो यूनिट क्रिएट करी गई थी डेसिबल की या डेसिबल स्केल की, उसमें डेसी तो बाद में लगा था, लेकिन पहले यूनिट बनी थी बेल। सो द एक्चुअल यूनिट वाज बेल, BEL। देखिए, ठीक है, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द बेल लेबोरेटरीज। तो इसीलिए उन्होंने अपने खुद के यूनिट का नाम अपने लेबोरेटरी के नाम पर ही रख दिया, बेल। अब ये बेल क्या है? At the time of development of this unit, the only thing that these people were concerned about was
कि डेसिबल का स्केल बनाएंगे अपन। अच्छा, डेसिबल क्या है ये मैं बता दूं। एक बेल को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो वो डेसिबल हो जाता है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 with the unit of bell to create decibel। तो डेसिबल का मतलब ये मत सोचना कि 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। 10 से डिवाइड करोगे तब तो वो सेंटी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, 100 से डिवाइड करोगे तो सेंटी हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो डेसी नहीं होगा, इट विल बी समथिंग एल। आई डू नॉट नो कि 10 से डिवाइड करने पे क्या कहते हैं, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, बट डेसी मीन्स मल्टीप्लीकेशन विद 10, ठीक है। एनीवे, अब बेल क्या था? बेल एक्चुअली इन्होंने बनाया तो साउंड के लिए था, लेकिन ये एक ऐसी यूनिट है विच वेरी फ्यू पीपल नो, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनीथिंग। यानी कि मैं अगर आपसे कभी ये कहूं कि बेटे आपके हाइट का डेसिबल क्या है, हो सकता है थोड़ी बहुत साउंड की नॉलेज रखने वाला आदमी हंसने लग जाए, बोले यार ये डेसिबल तो भैया आवाज के लिए होती है यूनिट, आप इसको हाइट के लिए कैसे लगा रहे हो? मैं बोला नहीं, लगा सकते हैं साहब, हाइट के लिए, वेट के लिए, रोशनी के लिए, मोटापे के लिए, लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, किसी भी चीज का डेसिबल हो सकता है, बेल भी हो सकता है। सो व्हाट इज दिस? बेसिकली बेल की डेफिनेशन सिर्फ इतनी कहती है, क्या चीज नापना है, लेट अस से यू आर मेजरिंग ए, तो पहले उसको नापने का एक रेफरेंस बना लो। रेफरेंस का मतलब बेंचमार्क। जैसे कि 10 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में और आप उनकी हाइट नापना चाहते हो, तो बोला कि भैया सबसे छोटा कौन है तुम में? बोला ये रहा साहब। तो बोला इसकी हाइट नापो, कितना आया? 5 फुट। तो बोला 5 फुट हमारा रेफरेंस हो गया। सो ए रेफरेंस विच इज पुट इन द डिनोमिनेटर हियर, एज यू कैन सी, दैट इज 5 फुट नाउ, ठीक है। फिर बोला कि हाँ भैया अगला बंदा हो, तुम्हारी हाइट कितनी है? बोला सर 5.5 फुट। तो बोला कि इसका बेल निकालो। बेल कैसे निकाला? 5.5 फुट डिवाइडेड बाय रेफरेंस हाइट, जो कि अपन ने डिसाइड कर ली, वो क्या है? 5 फुट। ये रेशियो हो गया। तो जैसे ही आपने ये रेशियो रखा, अब इसमें फुट फुट तो कैंसिल हो गए। नाउ दिस रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। अब ये एक डायमेंशनलेस नंबर बन गया। इसका लॉग टू बेस 10 निकालिए, यानी कि 10 बेस का लॉगरिथम निकालिए। तो अब इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने से जो आंसर आएगा नंबर्स में, वो बेल हो गया आपका। तो जिस आदमी की हाइट 5.5 थी, उस आदमी की हाइट बेल्स में मिल जाएगी। बोला डेसिबल में कैसे निकालेंगे? तो बोला ये जो अभी कैलकुलेट किया ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो उस आदमी की हाइट डेसिबल में मिल जाएगी। So decibel is a scale which can be used to measure anything. Now the primary question that usually comes in many minds, but nobody asks it, and therefore nobody explains it. यार ये इतना टेढ़ा मेढ़ा यूनिट क्यों बना रहे हो आप? अभी आपने बोला ना कि साउंड को प्रेशर में नाप सकते हैं, तो हो गया ना, साउंड प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, खत्म करो काम। इंटेंसिटी वॉट्स पर मीटर स्क्वायर हो गया, पावर वॉट्स हो गया, और क्या चाहिए? ये डेसिबल क्यों बना रहे हो? और वो भी इतना गंदा यूनिट। पहले रेफरेंस लाओ, फिर रेशियो लो, फिर उसका लॉग टू बेस 10 लो, भगवान ही जानता है क्यों। फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई भी करो, कोई तुक नहीं है, बस जिसकी जो मर्जी है कुछ भी गणित बना रहा है। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? द ट्रूथ इज there is a very sincere logic behind everything that these people have done. सबसे पहला कि ये log टू बेस 10 क्यों लिया? ठीक है, log है, कितनी सारी चीजें हैं लेने के लिए, साइन है, कॉस है, टैन है, एक्सपोनेंशियल है, दुनिया भर की मैथमेटिक्स पड़ी हुई है, इनको log चाहिए था। क्यों? कभी भी अगर आप देखें कि लॉगरिथमिक स्केल में कन्वर्ट किया जा रहा है किसी चीज को, तो उसका कारण होता है कि रेंज बहुत ज्यादा है नापने की, और उसको हम छोटा करना चाहते हैं। अब देखो, ह्यूमंस जो हैं, साउंड को प्रेशर और इंटेंसिटी
के फॉर्म में हियरिंग सेंसेशंस उनको फील होती है। और प्रेशर की जो एक्चुअल परसेप्टिबल रेंज है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स किस रेंज तक झेल सकते हैं या पता कर सकते हैं प्रेशर को, 0.00002 से लेकर के 200। अब इस रेंज को जरा आप एक नंबर स्केल पे प्लॉट करके दिखाओ, ये इतनी बड़ी नंबर स्केल हो जाएगी कि लिटरली इन्फिनिट है, यानी कि 0.2⁻⁵ से लेकर के, यानी कि 1 मिलियन पॉइंट्स बिलो 20, फिर उसके बाद 200 तक। तो इसकी जो रेंज है साउंड प्रेशर की जो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है, इसको जरा इमेजिन करके देखो, आपकी दुनिया भर की सारी ग्राफ और एक्स एक्सिस छोटी पड़ जाएगी इसके लिए। सो व्हाट टू डू? क्या हम ऐसे ही इनफाइनाइट लंबे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे क्या इसको? नहीं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन इसकी यूनिट चेंज कर देते हैं। बोले कि प्रेशर में नहीं नापेंगे यार हम, फिर किस में नापेंगे? अब आप एक काम करो, ये प्रेशर का रेफरेंस लो, डिवाइड करो, पहले तो इसको एक उसमें कन्वर्ट करो, किसमें? नॉन डायमेंशनल यूनिट में, और उसके बाद इसका 10 टू बेस लॉगरिथम लो। ऐसा करने के बाद आप चेक कीजिए कि इसका लॉग कितना आता है और इसका लॉग कितना आता है। नाउ यू सी, जो रेंज ओरिजिनली इट वाज स्ट्रेचिंग ओवर मिलियंस ऑफ नंबर्स, नाउ इट विल स्ट्रेच ओनली टू हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स। तो लॉगरिथमिक स्केल कभी भी जो यूज की जाती है मैथमेटिक्स में, उसका प्राइमरी जो कॉन्सेप्ट होता है, उसका जो फंक्शन होता है, वो है बड़ी बड़ी रेंजेस को पिचका करके छोटी रेंज में कन्वर्ट करना, ताकि भाई आप मिलियंस ऑफ नंबर्स में भटकते फिरो, उसकी बजाय सैकड़ों नंबरों में भटक लो, वो ज्यादा बेहतर है। सो टू श्रिंक द स्केल्स, लॉगरिथमिक टू बेस 10 इज यूज्ड। दूसरा क्वेश्चन, ये रेशियो क्यों लिया? भाई सीधे प्रेशर की बात कर रहे हो, इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, तो इंटेंसिटी का लॉग ले लो ना। अब इंटेंसिटी का रेफरेंस भी बनाओगे, फिर उससे डिवाइड करोगे, नॉन डायमेंशनल नंबर बना रहे हो, इसका क्या तुक है? इसका तुक ये है कि अपन लोग जो हैं, अपन हर चीज को कंपैरेटिवली ही परसीव कर पाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विथ ह्यूमंस। कंपैरेटिव स्केल्स पे अपन काम करते हैं। अगर आपको कोई चीज जिंदगी में पहली बार दिखाई जाए, ठीक है, यानी कि कोई आदमी बहरा है और उस बहरे आदमी को फर्स्ट टाइम अगर एक आवाज सुनाई जाए और उससे पूछा जाए, अरे ये आवाज जरा बताना, तेज थी कि धीरे थी, क्या वो कुछ बता पाएगा? ही वुड बी डम्ब, टोटली सेंसलेस, बोले क्या बोल रहे हैं यार, ये पहली बार आवाज सुनी है, मुझे क्या पता तेज है कि धीरे है। जब उसको हजारों आवाजें उसने जिंदगी में सुनी हो, तब जाके वो कंपैरिजन कर पाएगा कि यार आज तक मैंने धमाका नहीं सुना था, अब पहली बार धमाका सुना है, ये सबसे ज्यादा लाउड है, क्योंकि इससे ज्यादा लाउड मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। तो दिस इज हाउ ह्यूमंस इंटरप्रेट एनीथिंग, नॉट ओनली साउंड, एनीथिंग, इवन ब्यूटी। अगर एक आदमी के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सी तस्वीर ले जाकर रख दी जाए और बोले कि बताओ ये खूबसूरत है कि नहीं है, और उस आदमी ने जिंदगी में पहली बार आंख खोली है, वो अंधा था, तो उसको क्या पता लगेगा कि भाई ब्यूटीफुल है कि नहीं है? दिस इज द फर्स्ट थिंग ही इज सीइंग। सो ही कैनॉट टेल यू, he cannot give a judgment to you. A judgment, an intelligent judgment about the quality or the perception of anything can only be made when it is compared by a human mind with something which has been previously encountered. तो ये comparative word जो है, this is the basic instinct of how every human being judges anything. और इसी कारण से बेल लेबोरेटरी वालों ने बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि आप सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट का लॉगरिथम मत लो, पहले किसी रेफरेंस वैल्यू से उसका रेशियो निकालो, ताकि कंपैरिजन वही हो जाए। दिस रेशियो इज इनकॉर्पोरेटिंग द बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी टू गिव जजमेंट्स ऑन अ कंपैरेटिव स्केल। फिर लॉग लिया जिससे कि स्केल श्रिंक हो गई, फिर उसको बैलेंस आउट करने के लिए 10 और मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हर एक चीज जो इन्होंने ये यूनिट बनाने के लिए काम किया है, एवरीथिंग हैज गॉट अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट लॉजिक बिहाइंड इट।
And now internationally, the units of decibels are used to measure sound. तो साउंड का मेजरमेंट के लिए डेसिबल की ये स्केल जनरेट हो गई. इसका पूरा लॉजिक और फिलॉसफी अपन ने समझ ली, क्यों ऐसा किया जाता है. एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ऑल यू हैव टू डू इज डू नॉट ड्वेल ऑन द फिलॉसफी, क्यों था कैसे था आप भूल जाओ. जस्ट रिमेंबर हाउ टू कंस्ट्रक्ट द डेसिबल एंड जस्ट कीप इन योर माइंड कि साउंड के लिए यूज किया जाता है डेसिबल, लेकिन आपको जो मर्जी आए, जिस चीज के लिए भी हो सके, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ डेसिबल स्केल. लंबाई की डेसिबल हो सकती है, मोटापे की डेसिबल हो सकती है, स्पीड की डेसिबल हो सकती है, वेट की डेसिबल हो सकती है. एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिबल्स. दैट इज पॉसिबल, बट वी जनरली डू नॉट डू दैट. आप कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया को पसंद आएगी वो चीज. तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए बोलेगे तेरे को पता है तेरी हाइट इतना डेसिबल है, तो बोलेगा तो पागल है. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ समथिंग इज permitted, it is going to be accepted also. So don't do that. अभी एक्सेप्टेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में डेसिबल्स को साउंड के लिए ही मिली हुई है. हालांकि आपको अब पता है कि चाहे तो इसको किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. एनीवे, this part of discussion is over, and now the next thing that we are going to learn is how to convert the measurable quantities, that is sound power, sound intensity and sound pressure, into decibels. ठीक है, अब डेसिबल्स का लॉजिक तो अपन को समझ में आ ही गया है. तो जैसा मैंने कहा, किसी भी चीज को जो मेजरेबल है उसका डेसिबल बन सकता है. तो अब अगला अपना ये सवाल आ गया कि अगर मैं साउंड को डेसिबल में नापूं, तो साउंड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को डेसिबल में नापूं. साउंड की पावर भी होती है, साउंड की इंटेंसिटी भी होती है और साउंड की प्रेशर भी होती है. So which characteristic or which parameter should I convert into decibels? The answer is convert all of them and then make an informed decision as an international community कि कॉमन किसको रखना है. बोला कि साउंड की जो कुछ भी चीज मेजरेबल है ना, सबके डेसिबल बना के रख लो, कभी तो काम आएगी. तो बोला चलो स्टार्ट विथ साउंड पावर. पावर इज इन वॉट्स. ठीक है, तो पावर को अगर आप डेसिबल्स में कन्वर्ट करोगे, देन इट इज कॉमनली नोन एज साउंड पावर लेवल और SWL. हाउ डू यू डू दैट? सिंपल सा लॉजिक है. साउंड के पावर का एक रेफरेंस लाओ और जो भी सोर्स का पावर आप नापना चाहते हो, उस सोर्स की एक्चुअल वॉटेज ऑफ साउंड, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज वॉट्स, राइट. जूल्स पर सेकेंड में उसकी पावर, एक्चुअल सोर्स की पावर लेके आओ, डिवाइड करो, रेशियो बनाओ, रेशियो का log to base 10 लो और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पावर ऑफ सोर्स का डेसिबल बन जाएगा. तो ये जो कैलकुलेशन है जो आपके सामने यहां दिख रही है, इसका आंसर तो है dB. सो द वैल्यू विच विल कम आउट इज इन डेसिबल्स. लेकिन इसको बोलोगे क्या? यू विल रिप्रेजेंट इट एज कैपिटल L सफिक्स W. W का मतलब रिप्रेजेंटिंग वॉटेज और पावर. ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है, भाई मैं अलग अलग सोर्स लाऊंगा तो मेरा W तो अलग अलग होगा, लेकिन ये W रेफरेंस तो एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए ना, कॉमन क्वांटिटी होनी चाहिए. ये कितना है? तो ये है 10 raised to power -12 watts. This has been decided as the baseline or benchmark or reference value of sound power, which has to be commonly used by everybody internationally, यानी कि पूरे संसार में हर जगह अगर कोई साउंड पावर का डेसिबल बनाता है तो रेफरेंस पावर 10 to power -12 वॉट ही लेगा वो. ठीक है, तो साउंड पावर की डेसिबल अपन ने बना दी. अब उसी तरीके से साउंड इंटेंसिटी की डेसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेंसिटी I का रेफरेंस वैल्यू ले आओ, विच इज अगेन सेलेक्टेड एज 10 to power -12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर.
न्यूमेरिकल क्वांटिटी सेम है, याद रखने में आसान रहेगा। पावर का रेफरेंस था 10⁻⁻12 वॉट्स, इंटेंसिटी का रेफरेंस है 10⁻⁻12 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, बस यूनिट चेंज करनी है आपको। और उसके बाद आप जिस सोर्स की इंटेंसिटी नापना चाहते हो उसकी एक्चुअल इंटेंसिटी लाओ, रेफरेंस से डिवाइड करो और इस रेशियो का log to base 10 लो और उस को प्रोडक्ट बनाओ 10 से साथ मल्टीप्लाई करके। सो दिस न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन विल गिव यू अ वैल्यू इन डेसिबल्स। और इस तरीके से नापी गई इंटेंसिटी को, जो कि अब आपने डेसिबल में कन्वर्ट कर दिया है, इज कॉल्ड एज साउंड इंटेंसिटी लेवल एंड इट इज represented by capital L suffix I, representing the level of intensity। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल या SIL इस चीज को कहते हैं, ठीक है। नाउ along with it a small discussion is very important कि ये I को कैसे मेजर किया जाता है। Now an expression of intensity as a function of sound pressure is being given here। इसका डेरिवेशन अच्छा खासा लंबा डेरिवेशन है जो कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ भी नहीं है। आपको जो टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड है उसमें इसका डेरिवेशन है भी नहीं और ना ही आपके सिलेबस में है। सो ऑल यू हैव टू कंटेंट योरसेल्फ विद राइट नाउ इज टू रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी विदाउट प्रूफ। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड is given by the square of pressure divided by density and velocity। ये क्या चीज है, ये सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो अपन को ये समझना है कि यहां पर जो प्रेशर का स्क्वायर किया गया है ये साधारण प्रेशर नहीं है, यानी कि आप साउंड का प्रेशर नाप लो तो वो प्रेशर नहीं है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज PRMS और द रूट मीन स्क्वायर ऑफ प्रेशर। अब ये भी बताएंगे क्या चीज है, ये भी बता देंगे, और क्यों ऐसा लिया जा रहा है ये भी बता देंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज P square by rho V has to be remembered as the expression for intensity of sound, where P is the root mean square pressure, not simple pressure। अब ये रूट मीन स्क्वायर या RMS क्या चीज होती है। आप एक साउंड जनरेटिंग सोर्स को अपने सामने रख दो, उसके सामने आप जाके खड़े हो जाओ, लेट अस से विद अ मेजरिंग डिवाइस व्हिच कैन एक्चुअली रीड द प्रेशर ऑफ साउंड इन रियल टाइम। तो अभी RMS का कोई फंडा नहीं है, आप तो सीधे सीधे प्रेशर रीड कर रहे हो, ठीक है। आपने सोर्स को ऑन किया, लेट अस से वो सोर्स क्या है, कोई ऐसे कोई स्पीकर है, बड़ा सा लाउड स्पीकर है, उसके सामने खड़े हो, तो ऐसे बूम 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 ऐसे प्रेशर की पल्सेस आ रही है आपके पास व्हेन द म्यूजिक इज प्लेइंग, and you are holding an instrument which is actually measuring the pressure in real time। Now those who are intelligent wouldn't even need a hint if I tell you कि साउंड की जो प्रेशर का जो आप रीडिंग लोगे, इफ यू प्लॉट इट ऑन अ टाइम स्केल कि भाई मैं 15 मिनट तक 0 सेकेंड से लेकर के या 0 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर के प्रेशर नापता रहा और हर सेकंड पे मैं प्रेशर की वैल्यू लेके आया हूं, तो देखें कि प्रेशर का प्लॉट टाइम के साथ कैसा आएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी अ वेरी फेमिलियर कर्व, योर ओन साइनोसॉइडल कर्व, जैसा कि वाइब्रेशन में हर चीज का आपने सीखा है। तो भैया साउंड की जो प्रेशर है वो एक पानी या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह एक कांस्टेंट दबाव नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा या समझाया था कि प्रेशर, साउंड जो है, साउंड बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेशन और रेरिफैक्शन के थ्रू प्रोपगेट करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो ये कंप्रेशन का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़ा, रेरिफैक्शन का मतलब क्या है, प्रेशर घटा। तो एक जगह पे खड़े होकर साउंड नापोगे तो कभी आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्रेशन वेव को नाप रहा है, कभी आपका इंस्ट्रूमेंट रेरिफैक्शन वेव को नाप रहा है। सो यू विल कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग प्रेशर वैल्यूज इन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइड। एक थ्रेशोल्ड प्रेशर वैल्यू के साइनोसॉइडली वेरी करती हुई प्रेशर नपेगी। तो अब बताओ प्रेशर है कितना, कभी प्रेशर 0 हो रही है,
थ्रेशोल्ड पे आ रही है, कभी थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ प्रेशर? क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट तो वेरिंग प्रेशर बता रहा है, एक ही जगह पे खड़े और प्रेशर चेंज हो रहा है. सो द ओनली वे टू डू इज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एवरेजिंग, और इस तरह की कॉमनली एक्सेप्टेड टाइम एवरेजिंग का ही नाम दिया गया है, जिसको अपन कहते हैं रूट मीन स्क्वायर प्रेशर. तो इसमें किया क्या है, ये देखो, T1 से लेकर के T2 टाइम तक सारी प्रेशर की वैल्यूज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले ली, उसको स्क्वायर किया. स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे थे, इसीलिए स्क्वायर किया. क्योंकि स्क्वायर करने पे पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिलाकर के पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे. एंड यू इंटीग्रेटेड द स्क्वायर वैल्यूज ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम for a period of T1 to T2, and then you divided it with the time interval T2 minus T1. तो यानी बेसिकली क्या किया आपने, स्क्वायर ऑफ प्रेशर को सम करके उसका एवरेज, टाइम एवरेज ले लिया. तो इसमें ये मीन आ गया, टाइम एवरेज लेने से मीन आया, ठीक है. और स्क्वायर किया प्रेशर को, तो ये रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर आ गया. फिर उसके बाद आपने बोला यार हमको तो प्रेशर नापना था, हमने प्रेशर का स्क्वायर लिया था, तो कोई बात नहीं, इस पूरी क्वांटिटी का फिर बाद में एक अंडर रूट ले लो, और अंडर रूट लेने पे फिर से देखो प्लस माइनस क्वांटिटी आएगी, एंड यू इग्नोर द नेगेटिव्स. तो ये जो पॉजिटिव टर्म्स में जो प्रेशर की वैल्यू आ गई है, दिस इज कॉल्ड एज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स. तो स्क्वायर्स का मीन का रूट निकालना ही आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर्स कहलाता है. So this pressure value gives a time averaged pressure which now can be treated as a constant pressure value. Otherwise अगर आप सिंपल प्रेशर नाप करके यहां रखने की कोशिश करेंगे तो ये प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा ही नहीं आपको. This is the problem. So that is why we take PRMS, और PRMS कैसे लेना है ये मैंने आपको समझा दिया. But anyway, फिर उसकी कुछ गाइडलाइंस और है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉर दैट, कि जब भी आप प्रेशर को नापोगे टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और साउंड का प्रेशर तो अलग है. और जब आप साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो उस टाइम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल या फिर एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. एंड दीज टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आर इंटरनेशनली और कॉमनली नोन एज the normal temperature and pressure conditions. तो ये जो डेंसिटी जो आप नाप रहे हैं हवा की नीचे रखने के लिए, इसमें आई को नापने के लिए रो, दिस हैज टू बी टेकन एट एनटीपी या फिर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये भी आपके जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया. व्हाट इज एनटीपी? एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये क्या चीज है? दिस इज अ स्टैंडर्ड combination of temperature and pressure, and this has been prescribed for atmospheric conditions for taking measurements of standard values all over the world. उसी तरीके से ये जो वेलोसिटी नीचे रखी गई थी p स्क्वायर के नीचे, what is this v? v is the velocity of sound propagation again at ntp. तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे आप साउंड को प्रोपगेट करें तो आप पाओगे कि साउंड की वेलोसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है. भैया उसका प्रेशर अलग हो सकता है, इंटेंसिटी अलग हो सकती है, वॉटेज या पावर अलग हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोपगेशन है, you will be surprised to see that it will almost be constant at NTP and it will be found to be nearly 343 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड पर ही साउंड आगे चलती है, ठीक है. सॉरी, साउंड की जो स्पीड है वो इसी वैल्यू पे कांस्टेंट रहती है. एंड सिमिलरली व्हेन द डेंसिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट विल अप्रोक्सीमेटली बी 1.21 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और ये जो डिनोमिनेटर में आप यहाँ पर रो वी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका एक खास नाम भी है. दिस इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस. इम्पिडेंस का मतलब क्या है? एयर एज अ मीडियम has a characteristic impedance of rho into v. यानी कि बेसिकली आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 343, so 415 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड is the characteristic impedance of air
एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जो है रो वी, दिस इज अ मेजर ऑफ ओपोजिशन टू लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस किसी मीडियम का जितना ज्यादा होता है उतना ही वेव मोशन को ट्रैवल करने में तकलीफ होती है, यानी कि बाधा आती है उसमें। सो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जिन मीडियम का कम होता है उसके अंदर आपकी साउंड वेव्स इजीली ट्रैवल कर सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। और उसी तरीके से बिफोर आई रैप अप, अपन ने साउंड पावर लेवल देख लिया, साउंड इंटेंसिटी लेवल देख लिया, और उसके बाद फाइनल अब एक साउंड प्रेशर लेवल और रह जाता है, ठीक है। तो साउंड प्रेशर लेवल जैसा कि फटाक से आपके माइंड में आएगा, ठीक है, अब हमने सीख लिया साउंड प्रेशर लेवल फटाक से बना देते हैं। सोर्स का प्रेशर लाओ, रेफरेंस प्रेशर लाओ, डिवाइड किया, रेशियो बनाया, फिर इसका लॉग टू बेस 10 लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया डेसिबल। तो क्या यही आपका साउंड प्रेशर लेवल है क्या? साउंड प्रेशर लेवल which would now be ideally represented by L suffix P? The answer is no. Big surprise. क्यों भाई? इसका एक रीजन है। Since humans do not perceive auditory pressure, ऑडिटरी प्रेशर जैसा आपको पहले मैंने बताया था, जब तक 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना आए तब तक आदमी को पता ही नहीं लगता कि भाई साउंड का कोई प्रेशर भी है। आपको सिर्फ एक लाउडनेस की एक फीलिंग आती है जब प्रेशर बढ़ता है, तो आपके कानों पर भी ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ता जैसे पानी में डुबकी लगाने पे आदमी को लगता है। सो बेसिकली स्मॉल वेरिएशंस इन प्रेशर इवन इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर नॉट फेल्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसे कि बादल घिराते हैं, एकदम से हवाएं चलने लग जाती है और बिल्कुल बारिश का मौसम आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर्टिकुलर लोकेलिटी पे प्रेशर कम हुआ है। लेकिन प्रेशर कम होता हुआ क्या आपके शरीर में फील होता है क्या? नहीं होता। लेकिन प्रेशर उस पूरे एरिया का कम तो हो ही गया है। सो प्रेशर इज नॉट समथिंग विच ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड टू परसीव वेरी क्लियरली। लेकिन साउंड की प्रेशर अगर आप नहीं फील कर सकते तो कौन सी चीज फील करते हो जो बहुत क्लियरली आपको फील होती है? दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज अ पैरामीटर विच ह्यूमन बीइंग्स कैन वेरी शार्पली डिस्टिंग्विश। इंटेंसिटी में हल्का सा चेंज करो, आदमी को पता लग जाएगा, हाँ तुमने आवाज में कुछ चेंज किया है। लेकिन आवाज के प्रेशर में हल्का सा चेंज करो, आपको ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा। तो इस रीजन से अपन साउंड प्रेशर को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते, सीधे सीधे उसका डेसिबल नहीं लेते, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी दिस इज नॉट ऑफ मच यूज टू यू बिकॉज प्रेशर कैन नॉट बी डायरेक्टली सेंस्ड बाय ह्यूमंस। तो बोला कि ठीक है यार, फिर प्रेशर का कुछ तो लेना ही है अपने को, लेकिन उसको इंटेंसिटी के टर्म्स में ले लेते हैं। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। एज यू कैन सी, intensity of sound is directly proportional to the square of pressure. दिख रहा है आपको? रो वी तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ एयर तो कांस्टेंट हो गई एनटीपी पे। सो इंटेंसिटी ऑफ एयर साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रेशर। तो इसीलिए SPL जो है इट इज नॉट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ P by P रेफरेंस बट द रेशियो ऑफ P स्क्वायर बाय P रेफरेंस स्क्वायर। फिर उसका log टू बेस 10 ले लो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड नाउ दिस थिंग इज डिफाइंड एज द साउंड प्रेशर लेवल LP। ठीक है? तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर आपने स्क्वायर ले लिया है ब्रैकेट में, तो लॉगरिथम के रूल के हिसाब से ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा P by P रेफरेंस। पावर है ये 2 की। देखो ये किस तरीके से होता है, इफ यू डू नॉट रिमेंबर, अगर मैं किसी भी चीज का log टू बेस ऑफ A रेज टू पावर B कर दूं, दिस बिकम्स B टाइम्स log ऑफ A। दिस इज द रूल ऑफ लॉगरिथम। तो इस रूल को यूज करते हुए आप देखें, यहां पर जो स्क्वायर जो पावर थी, दिस बिकम्स अ प्रोडक्ट ऑफ 10, 2 जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर P by P रेफ रह जाएगा। So this is one important distinction that you have to remember. Sound power level कैसे डिफाइन करेंगे? SWL बोलते हैं उसको, साउंड वोल्टेज लेवल या साउंड पावर लेवल। दिस इज डिफाइंड एज LW 10 टाइम्स log टू बेस 10
एक्चुअल पावर बाय रेफरेंस पावर। उसी तरीके से साउंड इंटेंसिटी लेवल which is denoted by Li, this is 10 times log to base 10 actual intensity upon intensity reference. But sound pressure level थोड़ा सा बाकी दोनों से अलग है। कैसे अलग है? इट इज LP, ये चालू तो ऐसे कर सकते हो आप 10 टाइम्स log टू बेस 10, लेकिन अंदर क्या लिखना पड़ेगा? एक्चुअल प्रेशर नहीं, प्रेशर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P रेफरेंस का स्क्वायर। ऑल्टरनेटिवली यूजिंग द लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, ये स्क्वायर को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो, then LP can alternatively be written as 20 times log to base 10 of pressure by P reference। तो ये डिफरेंस है। SPL जो है वो SIL और SWL से इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो या तो ये याद रख लो प्रेशर के लिए, या ये याद रख लो। और ये इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्लासेस में अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए ये वाली जो फॉर्मूले हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। नाउ with this I will stop the lecture here. In the next class we will continue with relationship between SWL, SIL, SPL and all. फिर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी इसके अंदर, and with that I think we would have sufficiently covered your syllabus for first midterm. Okay.